وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि इसका तरीक़ाकार ये रहेगा कि इंशाअल्लाह आगा कुछ कुरान मजीद के हिस्से की तिलावत करेंगे और उसके बाद मैं आपकी खिदमत में उस हिस्से का सादा तर्जुमा बयान करूँगा और जहाँ बहुत ज़रूरी होगा उसकी मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी जाएगी। और कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह हम हर रोज़ एक जुज़ कुरान मजीद का इस तरह से मुकम्मल कर लें और जो कुरान मजीद की तिलावत का इंशाअल्लाह अजर व सवाब है और कुरान मजीद को समझना कि जो कई ज़्यादा ज़ाहिर बात है अल्लाह के नज़दीक मकाम और अजर व सवाब रखता है, इंशाअल्लाह हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले रहमान व रहीम अल्लाह के नाम से। सनाए कामिल अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का परवरदिगार है। रहमान रहीम रोज़ जज़ा का मालिक, हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझी से मदद चाहते हैं। हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम फरमाया, यानी ऐसे लोग जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई, न वो लोग जिन पर गज़ब किया गया और न ही वो जो गुमराह हो गए। सूरतुल बकरा। रहमान रहीम अल्लाह के नाम से। अलिफ लाम मीम, ये किताब जिसमें कोई शक की बात नहीं है, हिदायत है तक़वा वालों के लिए। कुरान ने हिदायत कहा अपने आप को तमाम लोगों के लिए, कुरान ने हिदायत कहा अपने आप को मुत्तकीन के लिए। ये दो दर्जे हैं, सब के लिए हिदायत है, यानी जो भी पढ़ेगा सुनेगा उसे बात समझ में आ जाएगी, पता लग जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस कुरान के दिखाए हुए रास्ते पर चले भी। हुदल लिल मुत्तकीन, जिस इंसान के अंदर उन बुराइयों से जिन्हें कुरान बयान कर रहा है बचने की ख्वाहिश है और वो रास्ता जिसे कुरान बयान कर रहा है उस पर चलने की ख्वाहिश है, ये मुत्तकी है, ये तकवा का पहला दर्जा है। तो ये जो मुत्तकीन होंगे इनकी कुरान अगले दर्जे की हिदायत करेगा, यानी इनको उस रास्ते पर चलने की तौफीक भी मिलेगी। ये माना है हुदल लिल मुत्तकीन का। मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज को कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और वो लोग जो आप पर नाजिल किया गया उस पर भी ईमान रखते हैं और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान रखते हैं, और वो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब होने वाले हैं। यकीनन जिन लोगों ने जानबूझकर इनकार किया, कुफ्र किया, कुफ्र यानी जानबूझकर बात को न मानना, जिन लोगों ने आपके पैगाम का इनकार कर दिया उनके लिए कोई फ़र्क नहीं कि आप उनको ख़बरदार करें या ख़बरदार न करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। उनका इरादा ही नहीं, उन्होंने न मानने को अपनी रूटीन बना लिया। अल्लाह ने इनके दिलों और इनकी समात पर मोहर लगा दी है, नीज़ उनकी निगाहों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब है। कि एक गिरोह कुफ़ार का, दूसरा गिरोह मुनाफिकीन का। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो ईमान नहीं लाए। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, जबकि हकीकत में सिर्फ़ अपनी ज़ात को ही धोखा दे रहे हैं, लेकिन इस बात का शऊर नहीं रखते। इनके दिलों में बीमारी है, निफाक की, मुनाफिकत की, धोखा देने की बीमारी। तो अल्लाह ने इनकी बीमारी को बढ़ा दिया। इन्होंने इलाज नहीं किया तो बीमारी बढ़ती जाएगी, अल्लाह का कानून यही है। इनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने इनकी बीमारी को बढ़ा दिया और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि झूठ बोला करते थे। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद बर्पा न करो तो कहते हैं हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं, ख़बरदार हो जाओ। यही लोग फ़सादी हैं, लेकिन इस बात का शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि दीगर लोगों की तरह तुम भी ईमान ले आओ, जिस तरह लोग हकीकत में ईमान लाए हैं, तुम ये धोखेबाजी फ्रॉड ख़त्म करो, हकीकत में ईमान ले आओ, तो कहते हैं क्या हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आए। मुनाफिक को मोमिन कम अक्ल और बेवकूफ़ लगता है।
कि ये क्यों अल्लाह और रसूल की हर बात मानते हैं, ऐसों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। ख़बरदार हो जाओ, बेवकूफ़ तो ख़ुद यही लोग हैं लेकिन इस बात का इल्म नहीं रखते। और जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब अपने शैतानों के साथ खलवत में होते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों के साथ तो हम सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह भी इनका मजाक उड़ा रहा है और उन्हें ढील देता है ताकि अपनी सरकशी में सरगर्दा रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही खरीद ली है, चुनाचे न तो इनकी तिजारत ने कोई फ़ायदा दिया और न ही इन्होंने हिदायत पाई। इनकी मिसाल उस शख्स की मानंद है जिसने रास्ता तलाश करने के लिए एक आग जलाई। जब आग ने उसके गिरदोपेश को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरों में सरगर्दा छोड़ दिया कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, बस इस गुमराही से वापस नहीं आते। या इनकी मिसाल उस शख्स की तरह है कि जो जा रहा हो और आसमान से शदीद बारिश हो रही हो जिसमें तारीकियां भी हो और गरज और चमक हो, बिजली की कड़क की वजह से मौत से डर कर वो अपने कानों में उंगलियां दिए लेते हो, हालांकि अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। करीब है कि बिजली उनकी आंखों को सल्ब कर ले, जब वो उनके लिए चमक दिखाती है तो उसकी रोशनी में चल पड़ते हैं, और जब तारीकी उन पर छा जाती है तो वो रुक जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बिनाई को भी छीन लेता। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह मुनाफिकों के राज खोलता था तो उनकी मिसाल दी है कि जब उन पर खौफ की कैफियत तारी होती थी, गोया कि शदीद बारिश है, अंधेरे हैं, बिजली कड़कती है, खुदा उनके राजों को बरमला कर देता है। और बाज़ औक़ात कुरान की आयत के नुज़ूल से उनको भी दिखाई देता है कि ये रास्ता है, लेकिन फिर उनकी मुनाफिकत उन पर गालिब आ जाती है, फिर अंधे हो जाते हैं। और फिर कुरान कहता है कि अगर अल्लाह चाहता तो ये जो इतना इनको दिखाई देता है, ये सलाहियत भी इनसे छीन लेता है। ये भी अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम बच सको, तकवा इख्तियार कर सको। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे तुम्हारी ग़िज़ा के लिए फल पैदा किए। बस तुम जानते बूझते हुए किसी को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल न बनाओ। और अगर तुमको इस कुरान के बारे में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो इस जैसी कोई सूरत बनाकर ले आओ और अल्लाह के अलावा अपने हामियों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। और अगर तुम ऐसा न कर सको, और हरगिज़ तुम ऐसा न कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, काफिरों के लिए तैयार की गई है। यानी तुम्हें भी डाला जाएगा उसमें, और जिनको तुम पूजते हो पत्थरों को, उनको भी उसी आग में डाला जाएगा। और उन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल अंजाम दिए कि उनके लिए बहिश्त के बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। उसमें जब भी कोई फल उन्हें खाने को मिलेगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो इससे पहले भी हमें मिल चुका। मिलती जुलते फल दुनिया से मिलते जुलते उनको अता किए जाएंगे, अगरचे जायके में और कैफियत में उनका कोई मुकाबला दुनिया के फलों से और दुनिया की चीज़ों से नहीं होगा। और जन्नत में उनके लिए पाकीज़ा अज़वाज होंगी और वो हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह किसी मिसाल के पेश करने से नहीं शर्माता, ख्वाह मच्छर की हो या उससे भी बढ़कर किसी छोटी चीज़ की। बस वो लोग जो ईमान ला चुके हैं वो जानते हैं कि मिसाल उनके परवरदिगार की जानिब से हक है, वो उसमें गौर व फिक्र करते हैं। लेकिन जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया वो कहते हैं कि भला इस मिसाल से अल्लाह का क्या मकसद है, अल्लाह इतना बड़ा, इतनी छोटी मिसाल अल्लाह नहीं दे सकता। वो या रसूल पाक से कहते हैं कि आप गलत बात कर रहे हैं, अल्लाह इतनी छोटी चीज़ की मिसाल नहीं दे सकता। तो अल्लाह क्या करता है, अल्लाह इसी से बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से को हिदायत करता है, और वो गुमराह सिर्फ बदअमल फासिक लोगों को ही करता है। वो लोग जो अल्लाह के साथ अहद बांधने के बाद उसे तोड़ देते हैं और जिस रिश्ते को अल्लाह ने जोड़े रखने का हुक्म दिया उसे तोड़ डालते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। भला तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो, कुफ्र कर सकते हो, जबकि तुम बेजान थे तो अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर वही तुम्हें मौत देगा और फिर आखिर में दोबारा तुम्हें ज़िंदा करेगा और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही तो है जिसने तुम्हें खल्क किया, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को खल्क किया, फिर उसके बाद आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उन्हें 7 आसमानों की शक्ल में बना दिया, और वो हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। और याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक नायब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने कहा क्या तू ज़मीन में ऐसे को नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद फैलाएगा और खून रेजी करेगा, जबकि हम तेरी सना की और तेरी तस्बीह और पाकीज़गी का विर्द करते हैं। अल्लाह ने फरमाया असरार खिलकत बशर के बारे में जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते।
और अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा सिखा दिए, फिर उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। फ़रिश्तों ने कहा तू पाक व मुनज़्ज़ह है हर ऐब से, जो कुछ तूने हमें बताया है हम तो बस वही जानते हैं, यकीनन तू बेहतर जानने वाला और हिकमत वाला है। तवज्जो फरमाइए, फ़रिश्तों की खिलकत में वो चीज़ें नहीं रखी गई जो अल्लाह ने आदम की खिलकत में रखी गई। आदम को तालीम दे दी, यानी आदम के अंदर वो चीज़ें रख दी बनाते हुए जो फ़रिश्तों को बनाते उनके अंदर नहीं रखी थी, और वो उनका इदराक भी नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने जब आदम को उन चीज़ों के नाम लिए, आदम पहचान गए, चूँकि आदम में सलाहियत अल्लाह ने रखी थी और यही सलाहियत सबब थी कि आदम अल्लाह का नायब बनेंगे। वो सलाहियत फ़रिश्तों में अल्लाह ने नहीं रखी थी, फ़रिश्ते नहीं जानते थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि ये कैसे नायब हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। जब फ़रिश्तों को वही अस्मा पेश किए, फ़रिश्ते उनका इदराक नहीं कर सके। क्यों? उनमें सलाहियत ही अल्लाह ने नहीं, उनको बनाया ही और तरीके से। जैसे अल्लाह ने मुख्तलिफ़ मखलूक़ात में मुख्तलिफ़ सलाहियत रखी हैं। मसलन जिस चीज़ को इंसान के पास अक्ल है वो दर्क कर सकता है, मसलन एक हैवान उस चीज़ को दर्क नहीं कर सकता। फ़रिश्ते बहुत बुलंद मखलूक हैं लेकिन इंसान से बुलंद नहीं है। फ़रिश्तों की खिलकत में वो सलाहियत अल्लाह ने नहीं रखी थी कि वो इन चीज़ों का इदराक कर सकते जो आदम इदराक कर सकते थे। लिहाजा आदम को खलीफतुल्लाह के लिए चुना गया। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। अल्लाह ने फरमाया आदम इन फरिश्तों को आप इनके नाम बतलाओ। जब आदम ने उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातें खूब जानता हूँ, और जिस चीज़ को तुम इजहार कर रहे थे और जो कुछ तुम छुपा रहे थे वो सब मैं जानता हूँ। और उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस की, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया तो वो काफिरों में से हो गया। ये है कुफ्र की हकीकत, जानबूझ के इनकार कर देना, ना मानना और अकड़ जाना, तकब्बुर करना। ये सबब बनता है इन सिफात से कि इंसान काफिरों की सफ़ में शामिल हो जाए। शैतान काफिर था नहीं, लेकिन जब उसने अकड़ दिखाई, न माना खुदा की बात को, तो अल्लाह ने उसको काफिरों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में क़याम करो और इसमें जहाँ से चाहो फरावानी से खाओ, लेकिन उस दरख्त के नज़दीक करीब न जाना वरना तुम दोनों ज़्यादती का इर्तिकाब करने वालों में से हो जाओगे। बस शैतान ने उन दोनों को वहाँ से फिसला दिया और जिस नेमत में वो दोनों क़याम पजीर थे उससे उन दोनों को निकलवा दिया। और हमने कहा अब तुम एक दूसरे के दुश्मन बनकर नीचे उतर जाओ और एक मुद्दत तक ज़मीन में तुम्हारा क़याम और सामान ज़ीस्त होगा, यानी तुम्हारे मफादात टकराएंगे इंसानों की और तुम आपस में दुश्मनियाँ करोगे। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे तो अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल कर ली, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। फिर हमने यानी अल्लाह ने कहा तुम सब यहाँ से नीचे उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम तक पहुँचे तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की फिर उन्हें ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होगा। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون हमने कहा तुम सब आयत नंबर 38 से शुरू कर रहे हैं। हमने कहा तुम सब यहाँ से नीचे उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम तक पहुँचे तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की फिर उन्हें न तो कोई खौफ होगा और न ही वो गमगीन होंगे। और वो लोग जो कुफ्र इख्तियार करेंगे और हमारी आयत को झुठला देंगे वही दोज़ख वाले होंगे, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। ये फार्मूला है कुरान मजीद का कि जिसके पास भी हिदायत आए अल्लाह की तरफ से
जिसने उसके आगे सर झुकाया और मानी और अमल किया वो उस पर मोमिन है, और जिसने नहीं मानी वो अल्लाह के नज़दीक कुफ़ार में शुमार होगा, न मानने वालों में। इन आयत के बाद आयत नंबर 40 से बनी इसराइल का तज़किरा शुरू होता है कि जो बहुत ज़्यादा जारी रहेगा। बनी इसराइल मदीना में जो यहूदी मौजूद थे वो बनी इसराइल हैं उस ज़माने के, उनको अपने गुज़श्ता बुज़ुर्गों की ख़राबियाँ याद कराई जा रही और कहा जा रहा है कि इतनी नेमतें खुदा ने तुम्हें दी थी, तुमने सब की नाशुक्री की, ज़लील और रुसवा हुए। अब तुम जिस नबी के इंतज़ार में मदीना में आकर बस गए थे, अब हमारा वो आखिरी नबी तुम्हारे दरमियान आया है, अब इस पर ईमान ले आओ ताकि मैं अपनी जो मैंने वादा किया था नेमतें अता करने का वो मैं अपना वादा पूरा करूँ। तुम अपना अहद पूरा करो, मैं अपना अहद पूरा करूँ। लेकिन इन लोगों ने जो सबसे बड़ी इबरत है यहाँ पर, जिसके असबाब पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कैसे लोग हैं, क्योंकि हम भी अपने ज़माने के इमाम के इंतज़ार में, क्या असबाब थे, क्या सिफ़ात थी कि जिसके इंतज़ार में ये लोग बैठे हुए थे, मदीना आकर बस गए थे। जब वो आया तो उसको न माना, इन्होंने डट गए उनके मुकाबले पर। औस व खज़रज वाले काफिर कबीले थे, उनको ये कहते थे हमारा आखिरी नबी आएगा तो हम तुमसे बदले लेंगे। और क्या हुआ कि वो काफिर औस व खज़रज पहले ईमान ले आए रसूलुल्लाह पर, और ये यहूदियों के कबीले मुखालिफ हो गए और फ्रॉड और चक्करबाजियों पर उतर आए। ये सारी की सारी इन आयात में इबरतें लेने वाली। सलवात पढ़िए मोहम्मद। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जिससे मैंने तुम्हें नवाजा, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और सिर्फ मुझी से डरते रहो। और मेरी नाजिल करदा इस किताब पर ईमान ले आओ जो तुम्हारे पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाली है, और सबसे पहले तुम इसके मुनकिर न बनो, और मेरी आयात को थोड़ी थोड़ी कीमत पर फ़रोख्त न करो, और सिर्फ मेरे गज़ब से बचने की फ़िक्र करो, और हक़ को बातिल के साथ न मिलाओ, और जानबूझकर हक़ को न छुपाओ, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और अल्लाह के सामने झुकने वालों के साथ झुका करो। क्या तुम दूसरे लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद भूल जाते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब की तिलावत करते हो? क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? और सब्र और नमाज का सहारा लो, बेशक ये नमाज बारे गिरा है मगर खुशू रखने वालों के लिए नहीं, जिन्हें इस बात का ख्याल रहता है कि उन्हें अपने रब से मुलाकात करनी है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जिससे मैंने तुम्हें नवाजा और तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी, और उस दिन से बचने की फ़िक्र करो जिस दिन न कोई किसी का बदला बन सकेगा, न किसी की सिफारिश कबूल होगी, और न किसी से कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, और न उनकी मदद की जाएगी। और वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बुरी तरह तकलीफ़ें देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर देते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ा इम्तिहान था। और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया और तुम्हें निजात दे दी और तुम्हारी निगाहों के सामने फ़िरौनियों को गर्क कर दिया। और वो वक्त भी याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया था, फिर उसके जाने के बाद तुमने बछड़े को इख्तियार कर लिया परस्तिश के लिए और तुम जालिम थे। फिर उसके बाद हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और वो वक्त भी याद करो जब हमने मूसा को तौरात और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला फुरकान कानून अता किया ताकि तुम हिदायत हासिल कर सको। और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने आप पर यकीनन जुल्म किया है, बस अपने खालिक की बारगाह में तौबा करो और अपने लोगों को जिन्होंने बुत परस्ती की है उन्हें कत्ल कर दो, तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है। बस उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वो खूब तौबा कबूल करने वाला था। जब इन्होंने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू किया, इस जुर्म की सज़ा में शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है। तो अभी कुछ ही देर हुई थी कि जिब्राइल नाजिल हुए रिवायात के मुताबिक, और उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि इनको रोक दो, इनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, खुदा इनकी हिदायत के लिए ये सज़ा इनको देना चाहता था। उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वो बहुत तौबा को कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। और वो वक्त याद करो जब तुमने कहा, ए मूसा, हम हरगिज़ तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे जब तक कि खुदा को सामने देख न ले। इस पर बिजली ने तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और तुम देख रहे थे। फिर मरने के बाद हमने तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर उठाया, शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और हमने तुम्हारे ऊपर बादल का साया किया और तुम पर मन और सलवा उतारा। इन पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें इनायत की हैं,
और वो हम पर नहीं बल्कि ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। यानी जो वो नाफरमानियाँ करते थे, इतनी नेमतों के बावजूद अल्लाह पर कोई जुल्म नहीं करते थे, अपने आप पर जुल्म करते थे। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और फरावानी के साथ जहाँ से चाहो खाओ, और शहर के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाना, और कहना हित्ततुन, यानी ए परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे, तो हम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे और हम नेक काम करने वालों को और ज़्यादा अता करेंगे। मगर जालिमों ने इस कौल को जिसका उन्हें हुक्म दिया गया था बदल दिया, दूसरा कौल कहने लगे, तो हमने जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया क्योंकि वो नाफरमानियाँ करते थे। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया, तो हमने कहा मूसा अपना असा पत्थर पर मारो। बस पत्थर पर असा मारने के नतीजे में उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। बनी इसराइल के 12 कबीले थे, अल्लाह ने 12 चश्मे जारी कर दिए और हर कबीले को अपने घाट का इल्म हो गया। बस अल्लाह के रिज्क से खाओ और पियो, लेकिन अल्लाह के मुल्क में फसाद फैलाते न फिरो। और वो वक्त याद करो जब तुमने कहा ए मूसा हम एक ही किस्म के खाने पर सब्र नहीं कर सकते, बस आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए ज़मीन से उगने वाली चीज़ें फराहम करें, जैसे साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर, प्याज। मूसा ने कहा तुम आला चीज़ को बदल कर अदना चीज़ लेना चाहते हो, अगर ये चाहते हो तो किसी शहर में उतर जाओ, जो कुछ तुम मांग रहे हो तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। और उन पर ज़िल्लत और मोहताजी थोप दी गई और वो अल्लाह के गज़ब में मुब्तला हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर दिया करते थे। और ये सब इसलिए हुआ कि वो नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज़ कर जाया करते थे। आयत नंबर 61। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अज्रुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून थुम्म तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। वलक़द अलिमतुम अल्लज़ीन अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा वमौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र अवानुन बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय इन्नल बक़रत तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालू अलआन जि'त बिलहक़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता वयुरीकुम आयातिहि लअल्लकुम तअक़िलून। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून अफतत्मऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु वहुम यअलमून वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बअदुहुम इला बअदिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला तअक़िलून। आयत नंबर 62। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और जो ईसाई हुए और साबईन, जो कोई इनमें से अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल बजा लाए तो उनके रब के पास उनका अजर है और न उन्हें कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। इस आयत का जो पैगाम है कि हर कौम अपने अपने ज़माने में जो भी नबी आता था उस पर सिर्फ ज़ुबानी दावा न करे बल्कि हकीकत में अल्लाह पर ईमान हो, हकीकत पर इस बात पर ईमान हो कि मैंने अपने आमाल का, अपनी दुनियावी ज़िंदगी का हिसाब किताब अल्लाह की बारगाह में देना है। और जब ये अकीदा होगा तो ज़ाहिर है कि फिर अमल साले ख़ुद ब खुद वजूद में आएगा, फिर नेकियां वजूद में आएंगी। जिसको पता हो कि मैंने हिसाब देना है वो फिर खराबी बदआमालियाँ नहीं करता। ये 3 बुनियादी शराइत हैं हर नबी की उम्मत के लिए, वरना अपने अपने नबी को मानना भी ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इस कहे, तवज्जो कीजिए, अगर कोई आकर ये कहे कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए हैं तो कहे कि मैं हज़रत ईसा के दीन पर बाकी हूँ, मैं रसूलुल्लाह को नहीं मानता। कोई हज़रत मूसा को मानने वाला ये कहे कि हम हज़रत मूसा के दीन पर रहेंगे, हज़रत ईसा को हम नहीं मानते। इसका ख़ुद कुरान मजीद ने सख्ती से इनकार किया और फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम कहो कि हम सब नबियों पर ईमान रखते हैं, आखिरी नबी समेत। अब आखिरी नबी पर ईमान रखते हैं। और फिर फरमाया कि जिस तरह तुम ईमान लाए हो किसी नबी का इनकार नहीं करते। अगर ये इस तरह मान लें तो फिर ये हिदायत याफ्ता है, और अगर ये इस तरह ना माने तो फिर ये झगड़ा करना चाहते हैं। झगड़ा किससे है? अल्लाह से। चूँकि जिस अल्लाह ने नबी पहले भेजे थे उसी अल्लाह ने ये नबी भेजा है, तो फिर क्यों झगड़ा करते हैं? तो इनकी मुश्किल कोई और है। ये आयत ये नहीं कहना चाहती कि जो इस्लाम कबूल ना करे और कहे, उसे पता चल जाए रसूलुल्लाह आए हैं, कहे मैं नहीं मानता, उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। अगली आयत में खुद ये माना कुरान मजीद में बयान शुदा है। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को खड़ा कर दिया और तुम्हें हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसे पूरी कुव्वत से पकड़ लो और जो कुछ उसमें मौजूद है उसे याद रखो, शायद तुम बच सको। पकड़ लो यानी इस पर अमल करो, थाम लो, इसको छोड़ना नहीं है, इस कानून को छोड़कर और कानून की तरफ नहीं जाना। फिर इसके बाद तुम दोबारा पलट गए। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल न होती तो तुम घाटे में चले जाते। और तुम अपने उन लोगों को खूब जानते हो जिन्होंने हफ्ते के दिन में तजावुज़ किया था, हद से बढ़ गए थे। हमने उन्हें हुक्म दिया जलील बंदर बन जाओ। बस हमने इस वाक़े को उस ज़माने के लिए भी और बाद में आने वाले लोगों के लिए भी इबरत और तकवा रखने वालों के लिए नसीहत बना दिया। इनको हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने से मना किया गया था। मछलियाँ इत्तफाक से हफ्ते के दिन ही आती थी किनारे पर, तो उन्होंने छोटी छोटी नहरें बना के उनको आगे ले आते थे, पीछे से नहरों का मुंह बंद कर देते थे और इतवार के दिन उनको पकड़ लेते थे। इन्होंने अल्लाह से गोया के चालाकी लगाने की कोशिश की। जैसे आजकल हम लोग भी बहुत सारे कामों में जब शरीयत रास्ता ना दे रही हो तो कहते हैं कोई ना कोई चालाकी लगा कर निकल जाते हैं, कभी नाम बदल लिया, कभी उन्वान बदल लिया और इस तरह के काम कर लेते। तो इन्होंने ये चालाकी की, अल्लाह ने इन पर अजाब भेजा, इनके चेहरे मस्क हुए बंदरों की शक्ल में और फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये दुनिया से चले गए। और ता क़यामत जो अल्लाह को चालाकी लगाने की फ़िक्र में होते हैं अपने दुनियावी चक्रों में, उनके लिए अल्लाह ने इस वाक़े को इबरत बना दिया और तकवा वालों के लिए नसीहत। चूँकि तकवा वाले तो पहले से ही अल्लाह को चक्कर देने के नहीं होते, ऐसी नीयत और इरादे में नहीं होते। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। एक बंदा कत्ल हो गया, कत्ल करने वालों ने दूसरे कबीले के जाकर फेंक दिया उसकी लाश को ताकि उस पर इल्ज़ाम लग जाए। उसकी लाश को लाया गया हज़रत मूसा के पास और कहा कि मूसा इसका कातिल हमें पता करके दो अल्लाह से। हज़रत मूसा को अल्लाह ने हुक्म दिया गाय ज़िबा की जाए। इस कौम ने इतने मौजज़े देखने के बाद हज़रत मूसा से कहा बंदा कत्ल हो गया, संजीदा मामला, आप मजाक करते हो,
हम कह रहे हैं बंदा ज़िबा हो गया, आप कह रहे हैं गाय ज़िबा करो, बंदा कत्ल हो गया। इस किस्म का मजाक हज़रत मूसा से, और इनका लहजा, लबो लहजा और इनकी हरकतें वो कुरान के अल्फाज से वाज़ेह। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा खुदा तुम्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है, तो वो बोले क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? मूसा ने कहा पनाह बखुदा मैं मजाक उड़ाकर जाहिलों में शामिल हो जाऊं। तो वो कौम कहने लगी अपने रब से हमारी दरख्वास्त कीजिए, वो हमें बताए कि गाय कैसी हो। हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है कि गाय ना बूढ़ी हो और ना बिल्कुल छोटी उम्र की हो, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। बस अब जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया गया उसे कर डालो। तो ये लोग कहने लगे अपने रब से दरख्वास्त कीजिए, वो हमें बताए कि गाय का रंग कैसा हो। जितना अल्लाह ने बताया है कोई चीज़ अगर उतना बंदा कर दे तो खुदा कबूल करता है। जो ज़्यादा बाल की खाल उतारता है फिर अल्लाह भी उसे गिरफ्तार से गिरफ्तार तर सख्त सख्त अहकाम को बनाता जाता है। जो सादा अल्लाह ने हुक्म दिया करो उसको अंजाम दे दो। हज़रत मूसा ने फरमाया, वो कहता है कि उस गाय का, अल्लाह फरमाता है कि उस गाय का रंग गहरा जर्द हो, देखने वालों के लिए फ़रहत बख्श हो। तो वो लोग कहने लगे अपने रब से फिर दरख्वास्त कीजिए कि वो हमें बताए कि गाय कैसी हो। ये गाय तो हमें समझ में नहीं आ रही, मिलती जुलती है, बहुत सारी गायें ऐसी हैं, और अगर खुदा ने चाहा तो हम उसे ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। यानी अल्लाह कह रहा है कोई भी ज़िबा कर दो, वो कह रहे नहीं कोई ख़ास गाय है अभी तक हमें समझ नहीं आ रही, हमें वो अच्छी तरह से बताओ। मूसा को तंग करना मुराद है। हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह कहता है वो गाय न तो ऐसी सिधाई हुई हो जो हल चलाए, न खेती को पानी लगाती हो, बल्कि वो सही और सालिम हो, किसी किस्म का धब्बा उस पर ना हो। कहने लगे मूसा अब तूने ठीक बात की है। तो उन्होंने गाय को ज़िबा कर तो दिया, हालांकि वो ऐसा करने वाले थे नहीं, यानी नज़दीक नहीं थे। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला, फिर एक दूसरे पर उसका इल्ज़ाम लगाने लगे, और जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसे ज़ाहिर करने वाला था। तो हमने कहा गाय का एक हिस्सा इस मकतूल के बदन पर दे मारो। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम अकल से काम लो। फिर ये सब देखने के बाद भी तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए, बस वो पत्थर की मानंद हो गए, लेकिन बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए, क्योंकि पत्थरों से भी कोई ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं, और कोई पत्थर ऐसा होता है जिसमें शगाफ पड़ जाता है, उससे पानी बह निकलता है, और उनमें से पत्थर ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की हैबत से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। यानी तुम पत्थरों से ज़्यादा सख्त दिल जो बनाए बैठे हो, अल्लाह की बात नहीं मानते। इतनी नेमतें उसकी खाने के बाद, इतना कुछ जानने के बाद अल्लाह भी तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं है। क्या तुम, अब मुसलमानों से खिताब है, इन यहूदियों से इस बात की तवक्को रखते हो कि इन सब बातों के बावजूद ये यहूदी तुम्हारे दीन पर ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह ऐसा है कि जिसने अल्लाह का कलाम सुना, फिर उसे समझ लेने के बाद जानबूझकर उसमें हेरा फेरी करता है, तहरीफ करता है अल्लाह के कलाम में। और जब ये लोग अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके, और जब तन्हाई में अपने साथियों से मिलते हैं तो कहते हैं जो राज अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोले वो तुम इन मुसलमानों को क्यों बताते हो? क्या तुम नहीं समझते कि मुसलमान कल तुम्हारे रब के हुजूर तुम्हारे खिलाफ दलील बनाएंगे? हिमाकत देखिए कि अपने साथियों से कह रहे हैं कि जो राज तुम्हारी तौरात में, किताबों में इस रसूल के बारे में है, वो मुसलमान जब तुमसे पूछे तो उन्हें क्यों बताते हो? कल को अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए दलील बनाएंगे कि इनको तो पता था। ऐसे कि जैसे अल्लाह को नहीं पता, और मुसलमानों को बताने से अल्लाह को पता चल जाएगा। जब इंसान खुदा से दूर होता है, करप्ट हो जाता है, कुफ्र की तरफ चला जाता है, तो फिर उसकी अक्ल भी गोया के मारी जाती है। इसलिए खुदा कहता है कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। आयत 77 अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून वमिनहुम उम्मिय्यून ला यअलमून अलकिताब इल्ला अमानिय्य व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबून अलकिताब बिअयदीहिम थुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही थमनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदह क़ुल अत्तख़ज़्तुम इन्दल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अन तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही ख़तीअतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. आयत नंबर 77 से, क्या ये यहूद नहीं जानते कि अल्लाह सब कुछ जानता है, खा वो छुपाएं या जाहिर करें? और इनमें से कुछ जाहिल ऐसे भी हैं जो अल्लाह की किताब को सिवाय अपनी झूठी आरजुओं के और कुछ नहीं समझते और वो बस अपने ख्याल खाम में रहते हैं। तो उन लोग बस हलाकत है उन लोगों के लिए कि जो अल्लाह की किताब को अपने हाथों से लिखते हैं, फिर दावा करते हैं कि ये अल्लाह की जानिब से है ताकि उसके ज़रिए एक नाचीज़ मुआवजा हासिल करें। बस हलाकत हो उन पर उस चीज़ की वजह से जिससे उनके हाथों ने लिखा, और हलाकत हो उन पर उनकी कमाई की वजह से। यानी जो दीन में तहरीफ़ की और गलत बताया लोगों को, उस पर एक अजाब, और जो उसके बदले में पैसा कमाया उस पर दूसरा अजाब। दो अजाब अल्लाह ने इनके लिए रखे। एक तरफ जाहिल अवाम किताब खुदा से दूर, पूछे किताब खुदा में क्या लिखा है, कोई तो कहते हैं कि वो जो हमारे किबला साहब ने बताया कि तुम जन्नत में जाओगे बाकी सब जहन्नम में जाएंगे, करना वरना कुछ नहीं। इस किस्म की झूठी आरजुएँ ये यहूदियों में बहुत ज़्यादा थी। खुद करप्ट हो गए थे, रसूलुल्लाह के मुकाबले में खड़े हुए और कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, क्योंकि अपने आप को अंदर से ख़राब कर चुके थे। एक तरफ से ये जाहिल अवाम और दूसरी तरफ से कमाने वाले उलमा, दीन को तहरीफ़ करके लोगों को गलत दीन बताने वाले उलमा, जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो किस किस्म के अकायद वजूद में आते हैं? बग़ैर अल्लाह की बातों को, अल्लाह की किताब को देखे हुए किस किस्म के अकायद वजूद में आते हैं? तवज्जो फरमाइए, आयत नंबर 80 में बताया। और यहूदी कहते हैं कि हमें तो जहन्नम की आग गिनती के चंद दिनों के अलावा छू ही नहीं सकती। ए रसूल, इनसे कह दीजिए, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है कि अल्लाह अपने अहद के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर तोहमत बांध रहे हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते? जो तुम कह रहे हो गलत है। यकीनन जो कोई भी गुनाह इख्तियार करेगा और उसके गुनाह उस पर हावी हो जाएं, तो ऐसे लोग जहन्नम वाले हैं, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे आमाल बजा लाएंगे, ये लोग अहले जन्नत है जिनमें वो हमेशा रहेंगे। और याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और अपने वालिदैन, करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों पर एहसान करो और लोगों के साथ अच्छी गुफ्तार से पेश आओ और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, फिर चंद लोगों के सिवा तुम सब बरगश्ता हो गए और तुम लोग तो हो ही रूगर्दानी करने वाले। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया कि अपनों का खून न बहाओगे। आज मुसलमान अपनों का खून बाहर। इन आयात को गौर से सुनिएगा और फ़लस्तीन को याद कीजिएगा कि जो मुसलमान कौम की गैरत का जनाजा निकला है और हम सब बेबस हैं और चुप हैं इंतहाई बेशर्मी के साथ। ये वो काम है कि जो यहूदियों ने किया और कुरान ने उनकी मजम्मत की
ये यहूदी दो कबीले थे, इन्होंने कुफार के दो कबीलों से एक यहूदी, एक कबीले कुफार का इत्तेहादी, दूसरा दूसरे काफिर का इत्तेहादी। वो काफिर जब आपस में लड़ते थे तो ये भी आपस में लड़ पड़ते थे। उसके बाद जब एक कबीला जीत जाता था तो ये देखते थे, जीतने वाले कबीले के इत्तेहादी देखते थे वो भी यहूदी हैं जो कैदी बन गए हैं, दूसरे काफिर के इत्तेहादी, तो फिर पैसे दे के उनको छुड़वाया करते थे। ये वही काम है अभी गज़ा में जो हो रहा है कि पहले उनको मार रहे हैं और अब उनके लिए मेडिकल और वो सहूलियात भेजी जा रही हैं ताकि वो अपने ज़ख्मों पर गोया के मरहम लगा सकें, लेकिन उनके जुल्म पर बोलने वाला कोई नहीं है। अल्लाह की किताब किस कदर जिंदा है, यानी वो अक्सर वो हरकतें जो यहूद ने की, अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके शर से बचने की तौफीक दे, उस अजाब से और उस जिल्लत से जो खुदा ने ऐसे काम करने वालों के लिए, कौमों के लिए रखी है कि खुदा की कोई पार्टी नहीं है। जो कुरान बता रहा है कि यहूदियों ने ये हरकत की और अल्लाह ने उनको जलील और रुस्वा किया, आज वही हरकत मुसलमान कर रहे हैं। और देखिए कि कुरान मजीद से कितनी इबरत लेते हैं। तवज्जो से सुनिएगा कि आयत नंबर 85 है। वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया कि अपनों का खून नहीं बहाओगे और अपने ही लोगों को बस्तियों से नहीं निकालोगे, फिर तुमने इसका इकरार कर लिया जबकि तुम इसके गवाह भी थे। और फिर तुम ही वो लोग हो जो अपने अफराद को कत्ल करते हो, फिर अपनों में से एक गिरोह को उनकी बस्तियों से निकाल देते हो, फिर गुनाह और जुल्म करके उनके दुश्मनों की मदद करते हो। जैसे आजकल बहुत सारे लोग इसराइल के इत्तेहादी बने हुए हैं, अमेरिका के इत्तेहादी बने हुए हैं, और अगर वो फिर तुम्हारे मुसलमान कैद होकर तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे यानी वहाँ मुराद यहूदी और अब मुराद मुसलमान है, जब कैद होकर ये तुम्हारे पास आते हैं तो तुम फिदिया देकर उन्हें छुड़ा लेते हो, यानी फिर तुम उनकी माली मदद शुरू कर देते हो ताकि अपने उस बदनुमा धब्बे को अपने पैसों के जोर पर छुपा सको। हालांकि उन्हें निकालना ही तुम्हारे लिए सिरे से हराम था। क्या तुम लोग अल्लाह की किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ हिस्से से कुफ्र करते हो? बस तुम में से जिसने भी ऐसा किया तो दुनियावी ज़िंदगी में उसकी सज़ा रुसवाई के सिवा और क्या है, और आखिरत में अल्लाह सख्त तरीन अजाब की तरफ इन लोगों को लौटाएगा और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले में दुनिया की ज़िंदगी खरीद ली है, बस उनके अजाब में कोई कमी नहीं की जाएगी और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। और यकीनन हमने मूसा को किताब अता की और उसके बाद पे दर पे अंबिया भेजे, और हमने ईसा इब्न मरियम को निशानियाँ अता की और रूहुल कुदस के ज़रिए उनकी तायद की। तो क्या जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ हुक्म लेकर तुम्हारे पास आता तो तुम अकड़ जाते हो? फिर तुमने बाज़ को तुम झुटला देते हो और बाज़ को तुम कत्ल कर देते हो। और ये लोग कहते हैं हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उनकी हट धर्मी कुफ्र के सबब उन पर लानत कर दी है और अब वो कम ही ईमान लाएंगे। आयत 89। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन बि'स मा इश्तरौ बिही अन्फुसहुम अन यकफ़ुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाअू बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन मुहीन। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नु'मिनु बिमा उन्ज़िल अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फ़लिम तक़्तुलून अंबियाअ अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुअ्मिनीन वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति थुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मअू क़ालू समिअना वअसैना वअशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'स मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आख़िरतु इन्दल्लाहि ख़ालिसतन मिन दूनिन्नासि फ़तमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन वलन यतमन्नवहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन
वलतजिदन्नहुम अहरसन्नास अला हयाह वमिन अल्लज़ीन अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन वबुश्रा लिलमुअ्मिनीन। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि वमलाइकतिहि वरुसुलिहि वजिब्रील वमीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। वलक़द अंज़लना इलैक आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और जब अल्लाह की जानिब से वो किताब आई जो उनके पास मौजूद बातों की तस्दीक करने वाली है, और वो पहले काफिरों पर फतह की उम्मीद रखा करते थे, फिर जब उनके पास वो आ गया जिसे वो खूब पहचानते थे तो वो उसके मुनकिर हो गए। बस काफिरों पर अल्लाह की लानत है। ये मारूफ आयत है। पहले काफिरों से कहते थे जब वो आएगा तो हम उस पर ईमान लाएंगे और हम तुम पर फतह पा लेंगे, और जब वो आया तो उसका इनकार कर दिया तो अल्लाह ने कहा ऐसे काफिरों पर खुदा की लानत है। इबरतनाक तरीन आयात में से एक ही आयत है। कितनी बुरी है वो चीज़ जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया कि सिर्फ इस बात की ज़िद में खुदा के नाजिल किए का इनकार करते हैं कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फजल नाजिल करता है, बस वो अल्लाह के गज़ब बालाए गज़ब में गिरफ्तार हुए और काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब है। ये जो फरमाया कि अल्लाह जिस पर चाहता है अपना फजल करता है, ये कहते थे कि नबी हम मान लेते अगर ये बनी इसराइल में से होता, चूँकि बनी इसराइल में से नहीं है लिहाजा अपने फैमिली बैकग्राउंड्स की वजह से हम इसको कबूल करने से कासिर। कुछ लोग ख़ानदान परस्त होते, तो बनी इसराइल को भी कबीला परस्ती और कौम परस्ती उनको भी लेकर डूब गई कि जब रसूलुल्लाह दूसरी कौम से आ गए, बनी इस्माइल में से आ गए। ये लोग इनको बनी इसराइल कहा जाता है, हज़रत इसहाक की औलाद में से थे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया उस पर ईमान ले आओ, तो जवाब देते हैं हम तो उस पर ईमान लाएंगे जो हम पर नाजिल हुआ है, उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं मानते, हालांकि वो हक है और जो किताब उनके पास है उसकी तस्दीक करता है। कह दीजिए अगर तुम मोमिन थे तो फिर अल्लाह के पैगंबरों को क्यों कत्ल करते थे? अब जो कह रहे हो जो हम पे नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, तो फिर तुम्हारी तारीख तो बड़ी भी है, भरी पड़ी है कत्ल अंबिया से। झूठे हो तुम। और यकीनन मूसा तुम्हारे पास वाज़े दलाइल लेकर आए, फिर तुमने उसके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम लोग जालिम थे। और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा दिया और तुमसे कहा कि जो चीज़ तौरात में हमने तुम्हें बताई है उसे मजबूती से थाम लो और बात को सुनो, तो वो लोग कहने लगे हमने सुन तो लिया मगर मानेंगे नहीं, और उनके कुफ्र के बायस उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत रच गई थी। कह दीजिए अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तो बहुत बुरे काम का तकाजा करता है तुमसे। ये जो है कि उन्होंने कहा कि हमने सुन तो लिया लेकिन मानेंगे नहीं, ये तंज है उन पर। उन्होंने ये नहीं कहा था हम मानेंगे नहीं, बात कहते थे मानेंगे, थोड़ी देर बाद नाफरमानी करते थे। तो हम हमारे सामने भी बार बार अगर हम किसी को काम कहें और वो नाफरमानी करे और फिर अगली बार हम कहें कि ये बात काम करो, वो कहे जी मैं करता हूँ, तो हम तंजन उसे कहते हैं जी मैं करता, तो अब सुन तो लिया लेकिन करूँगा नहीं। ये कुरान मजीद का इन पर तंज है। कह दीजिए एक और गलत अकीदा यहूदियों का, कह दीजिए ए रसूल अगर अल्लाह के नज़दीक दार आखरत यानी जन्नत दूसरों की बजाय खालिसतन तुम्हारे लिए है और तुम इस बात में सच्चे हो तो ज़रा मौत की तमन्ना करो। और ये लोग हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे उन गुनाहों की वजह से जो ये अपने हाथों से कर चुके हैं, और अल्लाह तो जालिमों को खूब जानता है। ए रसूल आप इन लोगों को ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हरीस पाएंगे, हत्ता के मुशरिकीन से भी ज़्यादा।
जिसको अल्लाह दीन देता है, किताब देता है, और वो फिर उसमें खराबी कर देता है, वो बाज़ हरकतों में मुशरिकीन से भी ज़्यादा पस्त हो जाता है। आज की दुनिया के आप मुशरिकीन को देखें, वो कुछ अकदार के पासदार हैं, उनका कोई बड़ा अगर करप्शन करे तो उसको हाजिर होना पड़ता है, और हमारे यहाँ पे करप्शन हो तो क्या होता है? कुछ अकदार में वो आगे निकल गए। यहाँ पे कुरान कह रहे हैं कि ये यहूदी अगरचे कहते हैं जन्नत हमारी है, हमने जन्नत में जाना है, लेकिन जिंदगी के मुशरिकों से भी ज्यादा हरीस है, इस कदर ये पस्त हो चुके हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इनके जवाब में कि ए रसूल, आप इनको ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हरीस पाएंगे, हत्ता कि मुशरिकीन से भी ज़्यादा। इनमें से हर एक की ये ख्वाहिश है कि काश उसे 1000 साल की उम्र मिले, हालांकि अगर ये उम्र उसे मिल भी जाए तो उससे अजाब को हटा नहीं सकती, और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उसे खूब देखता है। आप कह दीजिए, जो कोई जिब्राइल का दुश्मन है वो ये जान ले कि उसने, यानी जिब्राइल ने कुरान को अल्लाह के अमर से आपके कल्ब पर नाजिल किया, और ये कुरान उसकी तस्दीक करने वाला है जो पहले से मौजूद है, यानी तौरात, और ये कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत और बशारत है। यहूदियों ने एक बहाना ये बनाया था कि आप पर वही लेकर चूँकि जिब्राइल आता है लिहाजा हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे, अगर कोई और फरिश्ता होता तो हम ईमान ले आते। जिसने बात न माननी हो वो अपने 1000 बहाने ढूंढ लेता है। ए रसूल, कह दीजिए, जो कोई अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसके नबियों और ख़ास तौर पर जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन हो तो अल्लाह भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। और हमने आप पर वाज़े निशानियाँ नाजिल कर दी हैं, और इनका इनकार तो सिर्फ फासिक यानी बदकिरदार लोग ही करते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि जब भी उन लोगों ने कोई ऐद किया तो उनमें से एक गिरोह ने उसे उठा फेंका, यानी उस ऐद को तोड़ दिया, बल्कि इनमें से अक्सर तो ईमान ही नहीं रखते, यानी जो अल्लाह की बातें नहीं मानते, उनकी रूटीन होती है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये निशानी है कि इनमें से अक्सर असल में ईमान ही नहीं रखते, झूठ बोलते हैं, ईमान रखते हैं, असल में इनकी नाफरमानियाँ बता रही है कि ये ईमान नहीं रखते। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक ऐसा रसूल आया जो उनके यहाँ मौजूद किताब की तस्दीक करता है, तो अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट फेंक दिया, गोया कि उन्हें इल्म ही नहीं था। आयत नंबर 102। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिद्दार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अन्फ़ुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर अलम तअलम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ضل सवाअ अस्सबील वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतिय अल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह
इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुव मुहसिन फलहु अज्रुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत नंबर 102। और सुलेमान नबी के अहद हुकूमत में शयातीन जो कुछ पढ़ा करते थे ये यहूदी उसकी पैरवी करने लग गए। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन कुफ्र किया करते थे जो लोगों को सेहर की तालीम दिया करते थे, और वो उस इल्म की भी पैरवी करने लगे जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल किया गया था। हालांकि ये दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक उसे ख़बरदार न कर दें कि देखो हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, कहीं तुम कुफ्र इख्तियार न कर लेना। मगर लोग इन दोनों से वो सीख लेते थे जिससे वो मर्द और उसकी ज़ौजा के दरमियान जुदाई डाल देते, हालांकि इज़्न खुदा के बग़ैर वो इसके ज़रिए किसी को ज़रर नहीं पहुंचा सकते। और ये लोग उस चीज़ को सीखते थे जो उनके लिए नुकसानदेह थी और फ़ायदेमंद न थी, और यकीनन उन्हें इल्म है कि जिसने ये सौदा किया उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और काश वो जान लेते कि उन्होंने अपने नफ्सों का अपनी जानों का बहुत बुरा सौदा किया है, और अगर वो ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के पास इसका सवाब कहीं बेहतर होता। काश वो इस बात का इल्म रखते, यानी इसको समझ लेते। तवज्जो फरमाइए, हज़रत सुलेमान के दुनिया से जाने के बाद गलत लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। हज़रत सुलेमान ने साहिरों की सारी किताबें जो भी उनके पास थी उनसे जमा करके एक जगह दफन कर दी थी। हज़रत सुलेमान की वफ़ात के बाद इन लोगों ने उन चीज़ों को निकाला और प्रोपेगेंडा किया कि सुलेमान कोई नबी नहीं था, वो तो जादूगर था बहुत बड़ा, और अपने जादू के ज़ोर पे उसने इतनी बड़ी हुकूमत बनाई हुई थी, और वहाँ से जादू का बाज़ार गर्म हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्तों को हारूत और मारूत को नाजिल फरमाया कि जो सेहर का तोड़ सिखाते थे। अब जिसको तोड़ सिखाना होता है उसको एक्चुअल चीज़ खुद ब खुद सिखा दी जाती है, वो सीख लेता है कि ये होता कैसे है ताकि उसका तोड़ सिखाया जा सके। तो वो फरिश्ते कहते थे कि हम तुम्हें तोड़ सिखा रहे हैं, लेकिन याद रखो कि हम आजमाइश हैं, ये हम तुम्हें अच्छी बात सिखा रहे हैं, तुम इसको मिस यूज़ न करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अच्छा भी यूज़ किया जा सकता है, मिस यूज़ भी किया जा सकता है, उनके अच्छे फ़ायदे भी हैं और उनके बुरे इस्तेमालात भी हैं। तो इन लोगों ने बहरहाल ख़राबी की और बजाय अच्छे इस्तेमाल के बुरा इस्तेमाल शुरू किया। अल्लाह ने कुरान में यहाँ पर यह फ़ैसला सुनाया है कि जो भी सेहर करता है उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। हमारे कई अपने आप को मोमिनीन कहने वाले वो इस बाज़ार में सरगर्म रहते हैं, जादू सीखने के भी शौकीन होते हैं, जादू करवाने के भी शौकीन होते हैं, लड़ाइयाँ करवाने के, दोस्तों को जुदा करने के, मियाँ बीवी को जुदा करने के, कई पता नहीं क्या क्या लड़ाइयाँ होती हैं। कुरान इनको वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि अगर तुम जादू के पीछे हो आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। काश इस बात का इल्म रखते। ऐ ईमान वालो, राइना न कहा करो, उसकी जगह उन्जुर न कहा करो, और रसूल की बातें तवज्जो से सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। एक जुमला है राइना, ये ऐसा ही जैसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्यूज़ मी। जब रसूल पाक बात कर रहे होते थे, किसी को समझ नहीं आती थी, वो राइना कहता था, इसका मतलब होता था ज़रा रुकिए, दोबारा समझाइए। मुनाफिकों ने और यहूदियों ने एक हरकत की और इस जुमले को, इस लफ्ज़ को चेंज कर दिया, राई ना कर दिया। राई अरबी में कहते हैं चरवाहे को, जैसे लफ्ज़ बदल के तंग करने के लिए उसको उसका माना बदल दिया जाता है। तो ये पीछे से बैठ के राई ना कहते थे ताकि ख़राबी करें। अल्लाह ने फरमाया आज के बाद तुम लोगों ने राइना कहना ही नहीं है, जिसमें ख़राबी पैदा होगी उस चीज़ को बदल दो। उन्जुरना उसका माना भी वही है कि हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए, यानी हमें बात को समझा दीजिए। कुफ्र इख्तियार करने वाले चाहे वो अहले किताब हों चाहे मुशरिक हो, इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो। हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत से मखसूस कर देता है। अल्लाह बड़े फजल वाला है। हम किसी आयत को मनसूख कर देते हैं या उसे फरामोश करा देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी आयत नाजिल करते हैं। क्या तुझे खबर नहीं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है? क्या तू नहीं जानता कि आसमानों और ज़मीन की सल्तनत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा कारसाज और मददगार नहीं है। ये अब किबला तब्दील होने की तरफ मौजू जा रहा है, उसकी तरफ इशारा किया है। किबले की तब्दीली आयत से मुराद कुरान की आयत यहाँ पर मखसूसन नहीं है, कोई भी हुक्म अल्लाह का। अल्लाह फरमा रहा है कि हम अगर कोई मनसूख कर देते हैं या किसी को हम
भुला देते हैं जहनों से, तो हमसे बेहतर या उससे बेहतर या उस जैसा हुक्म अता कर देते हैं। चूँकि कुछ आयात के बाद फिर दूसरे पारे के आगाज़ में क़िबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल होना है, उसके लिए जहनों को आमादा किया जा रहा है। क्या तुम लोग अपने रसूल से ऐसे ही सवाल करना चाहते हो जैसे इससे कबल मूसा से सवाल किए गए थे? और जो ईमान को कुफ्र से बदल दे वो हतमन सीधे रास्ते से भटक गया है। ए मुसलमानों, अक्सर अहले किताब हक के वाज़े होने के बावजूद अपने बुग़्ज़ और हसद की बिना पर यह चाहते हैं कि किसी तरह ईमान लाने के बाद तुम्हें भी दोबारा काफिर बना दें। बस आप दरगुजर से काम लो और नज़रअंदाज करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म भेज दे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और नमाज को कायम करते रहो और ज़कात अदा करते रहो, और जो कुछ नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। तुम जो भी अमल अंजाम देते हो अल्लाह यकीनन उसका खूब देखने वाला है। और ये लोग कहते हैं कि जन्नत में यहूदी या नसरानी के अलावा हरगिज़ कोई दाखिल नहीं हो सकता। ये महज इनकी आरजुएँ हैं। आप कह दीजिए अगर सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो, तुम गलत कह रहे हो। हाँ, जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया और वो नेकियां करता है तो उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है, न तो उन्हें कोई खौफ होगा और न कोई गम होगा। आयत नंबर 113। वक़ालत यहूद लैसत नसारा अला शैइन वक़ालत नसारा लैसत यहूद अला शैइन वहुम यतलून किताब कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअा फ़ी ख़राबिहा उलाइक मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहू क़ानितून बदीउस्समावाति वल अर्दि व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्ना आयाति लिक़ौमिन युक़िनून इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम क़ुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. आयत नंबर 113। और यहूद कहते हैं कि मसीहियों का मज़हब किसी बुनियाद पर उस्तवार नहीं, और नसारा कहते हैं यहूद का मज़हब किसी बुनियाद पर उस्तवार नहीं।
हालांकि वो दोनों किताब खुदा की तिलावत करते हैं। इस तरह की बात जाहिलों ने भी की, बस अल्लाह बरोज़ क़यामत इनके दरमियान इस मामले में फ़ैसला करेगा जिसमें ये इख्तलाफ करते थे। तवज्जो फरमाइए, आजकल मुसलमानों के फ़िरके भी हर फ़िरका बाकियों से कहता है कि इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं, बिल्कुल सब का सब गलत है। ये बात गलत है, इसलिए कि मुसलमानों के पास कम से कम एक मुश्तरका चीज़ ज़रूर है जिसका नाम है कुरान मजीद। और कुरान मजीद जैसा कि आगे सूरह आल इमरान में आएगा इंशाअल्लाह, कि कुरान कहता है कि मुश्तरक चीज़ों की तरफ बुलाओ ताकि इकट्ठे हो सको। और हमने कुरान की इस रविश की जगह हमने क्या कहा कि जो लड़ने की जगह है पहले उसकी बात करेंगे और हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, और जिसका नतीजा आज दुनिया में मुसलमानों की हालत की शक्ल में हम देख रहे हैं। ये भी कुरान ने बताया कि यहूदी और मसीह एक दूसरे से कहते थे, यहूदी कहते थे ईसाइयों के हाथ पल्ले कख नहीं है, कुछ नहीं है, और वो दूसरे कहते थे कि इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं, हालांकि दोनों के पास अल्लाह की किताब मौजूद थी। लेकिन अल्लाह की किताब की तो वो बात करेगा ना जिसको पता हो अल्लाह की किताब में क्या लिखा है। जिन्होंने खुदा की किताब को दुनिया में आने के बाद से कभी देखने की कोशिश भी ना की हो, उन्होंने क्या किसी को कहना है कि अल्लाह की किताब हमारे दरमियान मुश्तरक है। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मसाजिद में उसका नाम लेने से रोके और उनकी वीरानी की कोशिश करे। इन लोगों को मसाजिद में दाखिल होने का हक नहीं मगर खौफ के साथ। इनके लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में अजाब अजीम है। और मशरिक हो या मगरिब दोनों अल्लाह ही के हैं, बस जिधर भी रुख करोगे उधर अल्लाह की ज़ात है। बेशक अल्लाह सब चीज़ों का इहाता रखने वाला, बड़ा इल्म रखने वाला है। और वो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है, पाक है वो ज़ात ऐसी बातों से, बल्कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो सब उसी की मिल्कियत है और सब उसके ताबे फरमान है। वो आसमानों और ज़मीनों का ईजाद करने वाला है, और जब वो किसी अम्र का फ़ैसला कर लेता है तो उससे कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। और बेइल्म लोग कहते हैं अल्लाह हमसे हम कलाम क्यों नहीं होता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इनसे पहले लोग भी इसी तरह की बातें कर चुके हैं, इनके दिल एक जैसे हो गए हैं। हमने तो अहले यकीन के लिए खोल कर निशानियां बयान कर दी हैं। हमने आपको हक के साथ बशारत देने वाला और तंबीह करने वाला बनाकर भेजा है, और आपसे अहले दोज़ख के बारे में कोई सवाल नहीं होगा। और ए रसूल, आपसे यहूद और नसारा उस वक्त तक खुश नहीं हो सकते जब तक आप उनके मज़हब के पैरों ना बन जाए। कह दीजिए यकीनन अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है, और इस इल्म के बाद कि जो आपके पास आ चुका है, अगर आपने उनकी अहले किताब की ख्वाहिशात की पैरवी की तो आपके लिए अल्लाह की तरफ से न कोई कारसाज होगा न कोई मददगार। और ये पैगाम है आज के मुसलमानों के लिए जो अमेरिका और इसराइल और यूरोप के कहने पर हर चीज़ का सौदा करते जा रहे हैं, अपने आप को बेदीन बनाने के लिए उनकी हर बात मानते जा रहे हैं। तो कुरान का फैसला है कि ये लोग तुमसे उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम अपना दीन छोड़कर इनका दीन ना अपना लो। और ये जो मुसलमान इस रास्ते पे चल रहे हैं, आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये अपना सब कुछ छोड़कर, एक मुल्क आपके सामने है जिसने इस्लाम इस्लाम और तौहीद तौहीद से पूरी दुनिया को सर पे उठा रखा था, और अब कितनी तेज़ी के साथ तमाम तर चीज़ें उनको यहूद और नसारा को राज़ी करने के लिए की जा रही हैं, और अपने मजलूम और जिनमें ताकत नहीं है उन मुसलमानों पर उन्हीं से ख़रीद कर असला गिराया जा रहा है। मैंने अर्ज़ किया कि ये माह रमज़ान इस एतबार से भी बड़ा गम का महीना है कि ताज़ा ताज़ा मुसलमानों की गैरत का जनाजा अमरीकी सदर और इसराइल के वज़ीर आज़म ने निकाला है, और मुसलमान हुक्मरान खामोश हैं, सिर्फ लफ्ज़ों से और ज़ुबानों से। वो भी कुछ लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बाकी लोग इस पर भी इतनी भी तौफीक उनको हासिल नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये पैगाम है हमारे लिए जिन्हें हमने किताब इनायत की है, और वो उस तरह तिलावत करते हैं जैसे तिलावत करने का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखते हैं, और जो इससे कुफ्र इख्तियार करेगा वही घाटे में है। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें अता की, और मैंने तुम्हें अहले आलम पर फजीलत दी थी। और उस रोज़ से डरो जिस दिन कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा, ना उससे मुआवजा कबूल किया जाएगा, और न शफात उसे फ़ायदा पहुँचा सकेगी, और न ही उसकी कोई मदद की जाएगी। और वो वक्त याद करो जब इब्राहीम को उनके रब ने चंद चीज़ों से आजमाया, और उन्होंने उन चीज़ों को पूरा कर दिखाया तो इरशाद हुआ, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। उन्होंने फरमाया, और मेरी औलाद में से भी, तो इरशाद हुआ, मेरा अहद और मेरा ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुँचेगा। और वो वक्त याद करो जब हमने खाना काबा को मरजा खलाइक और मकाम अमन करार दिया, और हुक्म दिया कि मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बना लो। और हमने इब्राहीम और इस्माइल पर यह जिम्मेदारी आयद की कि तुम दोनों मेरे घर को तवाफ, एतकाफ और रुकू और सजदे करने वालों के लिए पाक रखो।
और वो वक्त याद करो जब इब्राहीम ने दुआ की, ए रब इसे अमन का शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएं उन्हें समरात में से रिज़्क़ इनायत फरमा। इरशाद हुआ, जो इनमें से कुफ्र इख्तियार करेंगे उन्हें भी कुछ दिन दुनिया की लज्जतों से बहरामंद होने की मोहलत दूंगा जैसे वो अभी दे रहा है, उन्हें भी मोहलत दूंगा, फिर उन्हें अज़ाब जहन्नम की तरफ धकेल दूंगा और वो बदतरीन ठिकाना है। आयत नंबर 127। وإذ يرفع القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون आयत नंबर 127 से। और वो वक्त याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे और वो दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब हमसे ये अमल कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला जानने वाला है। ए हमारे रब हम दोनों को अपना इताअत गुजार और फर्माबरदार बना और हमारी औलाद में से अपनी एक फर्माबरदार उम्मत पैदा कर और हमें हमारी इबादत की हकीकत से आगाह फरमा और हमारी तौबा को कबूल फरमा, यकीनन तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ए हमारे रब इनमें एक रसूल उन्हीं में से मबऊस फरमा जो उन्हें तेरी आयात सुनाए और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और उन्हें हर किस्म के रज़ाइल से पाक करे, बेशक तू बड़ा गालिब आने वाला हकीम है। और इब्राहीम की मिल्लत से अब कौन इनहिराफ करेगा सिवाय उस शख्स के जिसने अपने आप को हिमाकत में मुब्तला किया। इब्राहीम को तो हमने दुनिया में बरगुज़ीदा बनाया और आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा। इब्राहीम का हाल काबिल ज़िक्र है कि जब उनके परवरदिगार ने उनसे कहा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, यानी झुक जाओ खुदा के सामने, तो वो बोले मैंने अपने आप को रब्बुल आलमीन के हवाले कर दिया। और इब्राहीम ने अपनी औलाद को इसी मिल्लत यानी इसी दीन पर चलने की वसीयत की और याकूब ने भी अपनी औलाद को यही वसीयत की कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा तुम ता दमे मर्ग
मुस्लिम ही रहो। मुस्लिम का माना सर झुका देने वाला, खुद को खुदा के सपुर्द कर दे वाला। सरकश मुस्लिम नहीं कहलाता। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक्त आया? उस वक्त उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी, किसकी इबादत करोगे? सब ने कहा, हम उसी माबूद की बंदगी करेंगे जो आपका और आपके आबाओ अजदाद इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक का माबूद है, और हम उसी के इताअत गुजार हैं। ये गुज़श्ता उम्मत की बात है, उनके आमाल उनके लिए थे और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए हैं। तुम लोगों से गुज़श्ता उम्मतों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या कहा करते थे, वो क्या अमल किया करते थे। वो लोग कहते हैं, यानी यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी या नसरानी बन जाओ तो हिदायत पा जाओगे। इनसे कह दीजिए नहीं, बल्कि यकसुई के साथ बिल्लत इब्राहीमी की पैरवी इख्तियार करो, और इब्राहीम मुशरिकों में से हरगिज़ नहीं थे। ए मुसलमानों, तुम कह दो, हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर ईमान लाए जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो इब्राहीम पर और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद की तरफ नाजिल किया गया, और जो कुछ मूसा और ईसा को दिया गया और जो अम्बिया को उनके रब की तरफ से दिया गया, उन सब पर हम ईमान लाए हैं, और हम उनमें से किसी में भी फ़र्क नहीं करते कि हम इस पर ईमान लाते हैं और उस पर ईमान नहीं लाते, और हम तो सिर्फ उसी अल्लाह के इताअत गुजार हैं। अब अगर ये लोग इसी तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम ए मुसलमानों ईमान लाए हो, तो फिर ये भी हिदायत पा गए, और अगर ये रूगर्दानी करें तो वो सिर्फ झगड़े में और मुखालफत के दरपे हैं। इनके मुकाबले में तुम्हारी हिमायत के लिए अल्लाह काफ़ी होगा, और वो खूब सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह का रंग इख्तियार कर लो कि अल्लाह के रंग से अच्छा और किसका रंग हो सकता है, और कह दो कि हम तो सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ा करते हो, हालांकि हमारा और तुम्हारा रब वही है, और हमारे लिए हमारे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, और हम तो उसी के लिए मुखलिस बंदे हैं। क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलादें यहूदी या नसरानी थे? इनसे पूछिए, क्या तुम बेहतर जानते हो या अल्लाह बेहतर जानता है? और उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिसके ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से कोई गवाही हो और वो उस गवाही को छुपा ले, और अल्लाह तो तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। ये उम्मत गुजर चुकी, उनके आमाल उनके लिए और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, और याद रखो कि तुमसे गुज़श्ता उम्मतों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या किया करते थे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम के फजल करम से आज अल्लाह ने एक पूरा पारा तिलावत और तर्जुमे के साथ पढ़ने की हमें तौफीक दी है। आप सब से गुजारिश है कि हर रोज़ इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। कल आज भी तकरीबन 5 मिनट की या चंद मिनट की ताख़ीर हो गई थी, कल पूरे 5:45 पर यह काम शुरू कर दिया जाएगा। तवज्जो फरमाइए, कुरान करीम में अल्लाह के रसूल खुतबा शाबानिया की नकल के मुताबिक एक आयत कुरान की तिलावत, बाकी महीनों में पूरा कुरान मजीद ख़त्म करने का अजर अल्लाह अता फरमाता है। और उसमें भी फिर नूर अला नूर के जब आप अल्लाह की किताब का तर्जुमा भी और उसकी मुख्तसर वजाहत भी सुन रहे हैं ताकि इस किताब को समझ सकें और फिर इंशाअल्लाह इसकी नसीहतों पर अमल कर सकें। तो आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ख़ुद भी शरीक हों बर वक्त आकर, और इंशाअल्लाह अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, अपने औलादें अगर जवान हैं, समझदार हैं, तो उनको भी इंशाअल्लाह यहाँ पर शिरकत की दावत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात।